الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم ورسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العظیم والفرقان الحمید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور لا و رب العرش جس کو جو ملا میرے آقا سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور اے رضا خود صاحب قراہ مداح حضور، اے رضا خود صاحب قراہ مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل پیارے آقا نامدار، مدینے کی تاجدار، لمبے لمبے بھیج دینے والے داتا و آقا کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کی ڈالیاں نوشار کرے۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اہل بیت اطہار کے نام پر درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میرا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ ربیع الاول شریف میں ہمیں کیا ملا، ربیع الاول شریف میں ہمیں کیا ملا اور ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہی میرا ٹاپک ہے۔ آپ حضرات اس کو پورا سنیں میرے دینی اور اسلامی بھائیوں۔ دیکھیے کہ آج ہم جو اس ربیع الاول شریف کا مہینہ جو چل رہا ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں۔ اس مہینے کے برکتیں اتنی ہے، رحمتیں اتنی ہیں، عظمتیں اتنی ہے، جو اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو جو خرچہ کرتا ہے، چاہے وہ 10 روپیہ خرچہ کرے، 50 روپیہ خرچہ کرے، 100 روپیہ خرچہ کرے، 200 روپیہ خرچہ کرے، اللہ رب العزت اسے ایسا نوازتا ہے کہ اس کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ایسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو کیا دیا، کیا ہم کو اور آپ کو ملا؟ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو عطا فرمایا ہے، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑا کارنامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے ہم اور آپ کو کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخر کائنات، فخر موجودات اور وجہ خلق کائنات کو اس مہینے میں پیدا فرمایا۔ اس مہینے میں ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نبی دیا ہے، وہ پیغمبر دیا ہے، وہ رسول عطا فرمایا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایسا نبی نہیں آیا، کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا، اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں مبعوث فرمایا، مبعوث فرمایا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ آنکھ دیا ہے، آنکھ دیا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ اور پیر دیا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور ہمارا جسم سلامت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہمارا منہ، ہماری زبان ہے، ہمارے رگ رگ ہیں، ہمارے جسمانی اعضاء ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور یہ زمین کا جو آپ جس پہ چل رہے ہیں، زمین کا یہ فرش بچھا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آسمان کا یہ جو
शामियाना तना हुआ है, ये भी अल्लाह का नेमत है। जो हम और आप खाते हैं ये भी अल्लाह का नेमत है, जो हम और आप पीते हैं ये भी अल्लाह का नेमत है। तो कहने का मकसद है इस दुनिया में जितनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह ने एक एक करके कुरान पाक में बयान फरमा दिया है। 27वीं पारे में सूरह रहमान में फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतें अपने बंदों के लिए अता फरमाई है, कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कहने का मकसद ये है अल्लाह ने इतनी सारी नेमतों को इस इंसान को दिया, लेकिन ये नहीं कहा हमने एहसान किया। जब मेरे नबी को इस उम्मत को दिया, मेरे नबी को जब इस इंसान को दिया, मेरे नबी को जब इस जहान में पैदा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, तब अल्लाह ने फरमाया हमने ऐ जहान वालों तुम पर एहसान किया, तुम पर एहसान किया। ये अल्लाह तबारक व तआला का है। देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें रबीउल अव्वल शरीफ की बरकतें अता फरमाए, बल्कि सबको अता फरमाए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हम और आप देखिए ये हमको इस रबीउल अव्वल शरीफ में मिला, क्या मिला हम आपको बता चुके हैं क्या मिला। सबसे बड़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए और एक बात इसमें जान लीजिए, जो रमजान का महीना है उसकी बरकतें अलग है, उसका मर्तबा अलग है, उसकी रहमतें अलग है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उस रमजान शरीफ में आप कहोगे रमजान शरीफ का मुबारक महीना है, इसमें क्या है मेरे दोस्तों। रमजान शरीफ का जो महीना है अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये महीना इसलिए फजीलत वाला है, हमने इस महीने में कुरान पाक को उतारा है, कुरान पाक नाजिल फरमाया है, इसलिए इतना मुबारक महीना है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, रमजान शरीफ से भी अफजल ये महीना है। क्या है? अफजल ये महीना है। मैं दलाइल के साथ में बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, दलाइल है मेरे पास। मैं इस महीने में देखिए जो रमजान शरीफ का महीना है उससे भी अफजल ये महीना है रबीउल अव्वल का। आप कहेंगे क्यों, आप हजरत तो ऐसे बयान कर रहे हैं, रमजान शरीफ का इतना अच्छा इतना मुबारक महीना है, उससे बेहतर ये कैसे हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, कुरान पाक रमजान शरीफ में उतरा है, तो जब रमजान शरीफ की बरकतें रहमतें अजमतें इतनी है, तो जिसके ऊपर कुरान उतरा हो, कहने का मतलब है जिस महीने में कुरान उतरा वो इतना अजमत वाला महीना है, और जिस महीने में साहिबे कुरान उतरा वो और ज्यादा अजमत वाला महीना, और ज्यादा रहमत वाला महीना है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हम और आपको इस महीने में देखिए कि साहिबे कुरान भी मिलता है। और साहिबे कुरान कौन है? अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आपको इस रबीउल अव्वल शरीफ में मिलते हैं। और जब मिलते हैं तो हमको इन्हीं से इस्लाम मिलता है, इन्हीं से इस्लाम मिलता है, इन्हीं से ईमान मिलता है, इन्हीं से कुरान मिलता है। इस्लाम के सारे कवानीन हम और आपको मिलते हैं। जो जीने का जिंदगी का सलीका है वो भी रसूलुल्लाह से मिलता है। जो हम और आपके तर्ज जिंदगी है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके बयान फरमा दिया है। हम और आपको जीने का तरीका सिखा दिया है, खाने का, उठने का, बैठने का, सोने का, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कहने का मकसद यही है कि हमें रबीउल अव्वल शरीफ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, और जब मिले तो हम अपने आप को इस रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में खुद सर्फ करें। और जिन जिन लोगों पे चंदा लगा हुआ है रबीउल अव्वल शरीफ का, वो हजरात ध्यान में रखे कि अगर हमने 200 रुपया इस माह रबीउल अव्वल शरीफ में दे दिया तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो गया। और देने के साथ साथ में हम और आप हजरात को बताना चाहते हैं, सबके लिए पैगाम है कि अपने छतों पे जो है झंडे लगाए, अपने घर को सजाए, गलिया को सजाए, क्योंकि मेरे सरकार आए हैं। कहते हैं सरकार की आमद मरहबा है, और दिलदार की आमद मरहबा है, आका की आमद मरहबा है, मक्की की आमद मरहबा है, मदनी की आमद मरहबा है। मेरे सरकार इस महीने में तशरीफ ला रहे हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हम और आपको खुशी के मगन में होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला वो हमें नेमतें अता फरमाता है, और सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने अता फरमाई है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये सबसे बड़ी नेमत हम और आपको अता फरमाई है। तो अब देखिए, अगर कोई कहता है कि ईद मिलादुन नबी क्या है, ईद मिलादुन नबी मनाना क्या है, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस पूरे साल में कितनी ईदें होती हैं मुझे बताइए? 52 ईदें होती। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें भी रबीउल अव्वल शरीफ की बरकतों से नवाजे। इस महीने में जो रबीउल अव्वल शरीफ है, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक साल में कितनी ईदें होती हैं? 52 ईदें होती हैं। कितनी ईदें होती हैं? 52 ईदें होती हैं। और ईद को मिला लिया जाए, बकरा ईद को मिला लिया जाए, और फिर बकरा ईद का जो 3 दिन है, तीनों दिन ईद है, तो ये और वो मिला करके 56 ईदें होती हैं। कितनी हैं? 56 ईद है पूरे साल में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो 56 ईदें हम और आपको अता फरमाई है, वो ईद एक ही ईद के सदक़े में अता फरमाई है, वो है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो और 55 ईदें हम और आपको अल्लाह ने अता फरमाई है, वो 55 ईदें सब नबी पे कुर्बान है, इस ईद मिलादुन नबी पे कुर्बान है। तो हमारी और आपकी जिंदगी ये होना चाहिए कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलूद की बात आ जाए, मिलाद की बात आ जाए, ईद मिलादुन नबी की बात आ जाए, तो हम और आप अपने पैसे को सर्फ करें, खर्चा करें, यही हम और आपको काम आने वाला। हम और आप पान गुटखा खाकर कितना फेंक देते हैं पैसा, कितना सर्फ कर देते हैं, इस तरीके से सर्फ करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो बेवजह है। और जो वजह है वो ये वजह है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे रसूल को मबूस फरमाया है। हम और आपको चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी ईद मिलादुन नबी का सदका अता फरमाए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हम कहने का मकसद ये है, अभी तक आप हजरात को हम बता चुके हैं कि ईद मिलादुन नबी इस महीने में यानी रबीउल अव्वल शरीफ में हमको क्या मिला, आपने समझ लिया। लेकिन क्या करना चाहिए, ये इस पे आते हैं। क्या करना चाहिए हम और आप इस महीने में? सबसे पहला नंबर क्या करें? सबसे पहला नंबर ये है कि हम और आप इस महीने में, इस मुबारक महीने में, रबीउल अव्वल शरीफ में हम और आप अगर करते हैं, सुभान अल्लाह, ये देखिए इन्होंने चंदा दिया है 200 रुपया, ऐसे ही सब लोग निकाल के दे दे तो माशाअल्लाह हो जाए। इसका पैसा किसके पास रहता है? तो ये जो निकाल कर दिए हैं इन्होंने, रबीउल अव्वल शरीफ की बरकतें और अजमतें इनको हासिल है, और सबको हासिल हो। ये नहीं कह रहे अल्लाह सबको इस रात देने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इस मिलादुन नबी में हम और आप तो 200 रुपया देते हैं, लेकिन अल्लाह ने इस चांद को पैदा फरमाया है, इस आसमान का सामियाना जो ताना है वो नबी की मिलाद के सदके में ताना। नबी की मिलाद के सदके में फर्श जमीन का बिछाया है, नबी की मिलाद के सदके में हम और आप खा पी रहे हैं, चल रहे हैं। आज दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, यानी अमीर आदमी हो, अगर वो कहे हम अपने बलबूते पे हैं, तो गलत कह रहा है। उसको जो भी मिला है, जितना भी मिला है, मेरे आका से मिला, मेरे आका से मिला है। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। और मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, फिर दूसरी जगह आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है साचा हमारा नबी, देने वाला है साचा हमारा नबी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सब लोग मिलकर इस ईद मिलादुन नबी को सेलिब्रेट करें, इस मिलादुन नबी को सब लोग मिल करके और जो है अदा करें इसमें। और मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कहने का मकसद ये है, अपने घरों पे, अपने घरों में जो है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहे और दरूद शरीफ पढ़ते रहे। सबसे पहली बात यह है कि नमाज पढ़ते रहे। अगर नमाज पढ़ेंगे रबीउल अव्वल शरीफ ही में ही नहीं, सारी जिंदगी में अपना उसको अपने तर्ज जिंदगी बना ले, सबसे अहम इबादत है। हम उसको नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक ताला के प्यारे रसूल के आंखों की ठंडक नमाज है, उनके आंखों को ठंडक पहुंचेगी, और जब से ठंडक पहुंचेगी तो हमारा पे वो करम होगा, वो फैजान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा देंगे कि हमारे घर भी चमकते रहेंगे, हम भी चमकते रहेंगे, हमारे माल और दौलत में भी अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अब आइए आप हजरात को आप बताते हैं कि इस माह रबीउल अव्वल शरीफ में हमने कुछ बातें बताई हैं जो इससे करना चाहिए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये जरूरी है दरूद शरीफ पढ़ें,
हर वक्त दरूद शरीफ पढ़े। बहुत लोग जुलूस में निकलते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सबके लिए ही पैगाम है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सबके लिए ही पैगाम है कि सब बहुत ही एहतमाम से, बहुत ही प्यार मोहब्बत से इस ईद मिलादुन नबी का सेलिब्रेट करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम और आप शरीयत के खिलाफ कर जाते हैं। जैसे डीजे बज रहा होता है, हम रक्स कर रहे होते हैं, ये गलत है, ये नाजायज है। हम और आप अगर मोहब्बत करें तो दिल हमारा रक्स करना चाहिए। क्या दिल हमारा रक्स करना चाहिए? वो भी इश्क़ मुस्तफ़ा में, इश्क़ रसूल में मगन होना चाहिए। हम दुनिया को दिखाने के लिए ये कहे कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। क्या कहे? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। खूब इधर उधर तड़े के फड़के, ये गलत बात है मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। जब हम ये कहें कि नमाज में, अल्लाह तबारक व तआला की नमाज पढ़ने में भी हमारी जिंदगी कबूल है, नमाज पढ़े तब कहे कि या अल्लाह तबारक व तआला हमारी जो जिंदगी है मौला तेरे लिए है, तेरे रसूल के लिए हमारी, तब है। ये झूठा नारा लगाना छोड़ दीजिए मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। हम और आप अगर नारा लगाते हैं तो नारा लगाने वाला जैसा काम भी करें, नारा लगाने वाला जैसा काम भी करे। सरकार की आमद का जश्न तो हम मना रहे होते हैं, हमारे छतों पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा तो लगा रहता है, इस्लाम का झंडा तो लगा रहता है, लेकिन देखिए कि उस घर में नाते मुस्तफ़ा बजने के बजाय, तकरीर मुस्तफ़ा होने के बजाय, मिलाद मुस्तफ़ा होने के बजाय उस घर में देखिए क्या आवाजें आ रही हैं। कहीं गाना की आवाज आ रही है, कहीं उसमें देखिए कि लोग देखिए कैसा कैसा गाना बजाते हैं, कैसा कैसा काम करते हैं। बेनमाजी उस घर में रह ही नहीं सकता है जिस घर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी का झंडा लगा। उस घर में कभी गाना नहीं बजना चाहिए जिस घर पे रसूलुल्लाह का झंडा लगा हो, जिस घर पे इस्लाम का झंडा लगा हो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस्लाम यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस्लाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो इस्लाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने जो लोगों को बताया, आपने जो लोगों को करने का बताया है जायज तौर पे, वो इस्लाम है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हम और आपका स्टेटस नहीं होना चाहिए कि हम और आप दूसरी जगह मरगूब रहे, हम और आप दूसरी जगह मतलूब रहे, बल्कि मतलूब दुनिया ना बने, बल्कि मतलूब मुस्तफ़ा बने, इश्क़ मुस्तफ़ा बने। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कहने का मकसद यही है, आखिरी मकसद यही है कि आप हजरात बहुत ही ध्यान से इस बात को भी अपने अंदर, अपने जहन के अंदर नशीन कर ले कि जब जुलूस मोहम्मदी चले, चाहे वो रिसिया बाजार में हो, चाहे कहीं और भी हो, हम और आप अपने साथ में अपनी वाइफ को नहीं ले जाए, यानी औरतें नहीं जाना चाहिए। और देखिए कि बालिग बच्चियां भी नहीं जाना चाहिए। नाबालिग बच्चियां वही 7 साल की, 8 साल की, 9 साल तक भी जा सकती हैं बच्चियां, और बाकी उससे 15 साल वाली बच्चियां, यानी जो बालिग है बच्चियां, वो नहीं जा सकती हैं। जो औरतें हैं वो जुलूस मोहम्मदी में बिल्कुल नहीं जा सकती हैं, क्योंकि द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि कोई भी औरत हो, सबके लिए पर्दा इस्लाम में जायज है। सबके लिए पर्दा जो है अहम जरूरी है, और पर्दा फर्ज है। पर्दा फर्ज है। मेरे आका इस दुनिया में आए हैं तो जायज काम को बताने के लिए नहीं, बल्कि नाजायज काम को रोकने के लिए आए, हराम कामों से लोगों को मना करने के लिए आए हैं मेरे सरकार। तो जब मेरे सरकार हराम कामों के लिए मना करने आए हैं, तो हम इस मिलादुन नबी के महफिल में, इस मिलादुन नबी के जुलूस में हम और आप हर काम वो ना करें जिसे रसूलुल्लाह ने मना फरमाया हो। जिस काम का जायज करने के लिए हम और आपको बताया हो, हर वो काम जायज है जो शरीयत में जो है, हर वो काम जायज है जो शरीयत में हराम ना हो, मना ना हो, नाजायज ना हो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कहने का मकसद यही है, हम और आप हजरात सुकून के साथ किसी के दिल को, किसी को तकलीफ ना पहुंचाते हुए हम इस त्योहार को सेलिब्रेट करें और ऐसे तरीके से मनाए जैसे हम और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इस तरीके से हम और आप इस त्योहार को मनाते रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस माह रबीउल अव्वल शरीफ की बरकतें हम और आपको रहमतें अल्लाह ताला अता फरमाए, और इस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में जितना हो सके हमसे उतना इस पे खर्च करने की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। जिन जिन लोगों के पास अभी तक बाकी है, जिन लोगों ने नहीं दिया है, उन सब हजरात से गुजारिश है कि इस मिलादुन नबी में दे दे, मोहब्बताना वाशकाना गुजारिश है। दिल पे होता है, इसके मुस्तफ़ा पे होता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाई, किसी के कहने से क्या जाता है, हम तो अपनी तरफ से बगैर कहे हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैसा दे रहे हैं।
کسی کے کہنے سے نہیں، کسی کے دکھاوے سے نہیں، بلکہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں اور دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم، سواگت اور ان کا استقبال کرتے ہیں، استقبال ربیع الاول کرتے ہیں۔ ہو رہا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اب آپ حضرات کے سامنے حضرات گرامی، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ سب لوگ حضرات اچھے